The ordinary skin. And if you discuss upper or lower lip, one at the same thing. Then you see there is a line called as transition zone, which you mentioned. Then you enter into the red area, the particular region which you call it as lip. Now today you are now familiar that lip has got three surfaces, right? The outer one, that is all around, that is the cutaneous or outer. Then you come across the red area, or it is also called as vermilion zone, right? Then what next? After that, mucocutaneous junction, because this area will definitely be addressing the modified skin, right? Then we enter, if you hold, you can hold your lip and the thumb that is pointing towards your inner surface is the mucosal surface. Is it clear? Or any ambiguity about the surfaces? The outermost जो आपका region होता है, that is the cutaneous surface, right? And the area you see two-ply chapstick, right? That is the red area or vermilion zone, right? Then if you open your mouth and you hold the lip and your thumb is inside and the moist area, moisture to which your thumb is touching is the inner surface, right? Yes, or you call it as mucosal surface. This is how we divide the lip. Now, first of all, if we talk about this outer surface, we have to learn the histological features. So let me find some other picture to make it clear. So we can see on the top the stratified squamous epithelium. फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आप कर चुके हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और इसकी वैरायटी क्या होती है? इसकी वैरायटीज केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड. तो जब हम ऑर्डिनरी स्किन का जिक्र करते हैं तो व्हाट कम्स इन योर माइंड? केराटिनाइज्ड. वेरी गुड. सो वी हैव गॉट दैट केराटिनाइज्ड लेयर इन इट, राइट? लेट मी फाइंड द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ इट. आउटर सरफेस पे वी फर्स्ट डिस्कस दैट इज अ ऑर्डिनरी स्किन. So laden with the keratinized epithelium, which is gonna be peel off. Okay. So what happens? अगर आप इसको skin के तौर पे देखें तो you get the epidermis and dermis. जो फर्स्ट ईयर में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वही चीजें आपकी ये outer surface पे होंगी. You told me that your outer surface carries the hair follicle. ऐसे ही? Yes, ma'am. Okay. Hair follicle का word आ गया तो if you have heard about the term, रोंगटे खड़े हो जाना. Yes, ma'am. या goose flash skin. ठीक है, क्या होता है उसमें? अभी तो सर्दियां जा रही हैं, but what you experience? Erector spine. Yeah, there is a muscle attached towards the shaft of your hair. तो क्या करेगा? जब उसकी कंट्रैक्शन होगी, स्मूथ मसल है, इनवॉलेंट्री है, सो क्या होगा? हेयर फॉलिकल स्ट्रेटन अप हो जाएगा. सो वी शुड कीप इन माइंड कि हमारी स्किन में अगर ऑर्डिनरी आपने एपिथेलियम के बाद हेयर फॉलिकल का जिक्र किया तो आपके पास उसके साथ एसोसिएटेड मसल भी आ गए, राइट? ओके. Then you told me that there should be the sebaceous glands. वो भी आप एक्सपीरियंस करते हो आपके फॉलिकल्स में. समटाइम्स इन्फेक्शन हो जाए, आपने इसको स्क्रैच अप कर लिया, कोई बॉयल बना हुआ है, इट गेट इन्फेक्टेड तो फॉलिकलाइटिस हो जाता है, isn't it? Right? So या कोई कट लग जाए, then again you can get some pussy discharge from that. So underlying gland buried are the sebaceous gland, right? So keep in mind the things associated with your skin. So ये जो आपको bunch मिलेगा, these are the sebaceous glands and they are almost nearby the hair follicle shaft. ये buried shaft है जिसका hair follicle की, जिसका cortex medulla होता है. अगर आप hair की डिटेल पढ़ें, so it also has got different layers, right? और इसके इर्द गिर्द आपको जो bunch of gland का bulk मिलेगा, that is the sebaceous gland. Okay, what else you experience on your skin? Yeah, you get the sweating. Yes. So the thing you experience in your daily life, you can easily recall that what is present on your outer surface of the lip. The epithelium, ordinary epithelium, and the hair follicles over there, and associated erector pili muscles, and you get the boil, as I've told you. Then you get the sebaceous glands and buried sweat glands. Sweat gland की क्या variety है? फर्स्ट ईयर के हिसाब से अगर आपके इसकी शेप के हिसाब से क्या सिंपल बॉइल्ड ट्यूबुलर. तो अगर आपके कट सेक्शंस याद हो, अभी आप प्रोफ से गुजरे तो उसकी एपिथेलियम भी याद होगी,
Can anyone tell? Epithelium or secretory part and excretory part. Yeah, secretory part carries simple burden, just like that of your thyroid, isn't it? So अगर उसका excretory duct, वो मेन सड़क जो आपकी स्किन की तरफ सफर करती है, उधर क्या epithelium होती है? There is a stratification then, right? So a rare place where you get the stratified layer, right? So आपको deep-seated buried sweat glands मिल जाएंगे, ठीक है? और आपने इसको उसी तरह स्टडी करना है कि ये एपिडर्मिस है और नीचे डर्मिस है, right? Okay. After that, we are gonna enter into the red area. This particular we can mark a line and label it as a transition zone. या आप ये कर सकते हैं जो आपको लिप की बाउंड्री लग रही है, that is a transition zone. यहाँ चेंज ओवर हो जाए, ठीक है? फिर क्या हो रहा है? When you enter into the red area, जो आप रूटीन में देखते हो कि ये लिप था सिर्फ, that is red area or vermilion zone. Now what is going to happen here? It becomes the modified skin. Still skin है, लेकिन बहुत modified हो चुकी है in a sense that first of all we will start with the epithelium. Epithelium में क्या है? The epithelium now is going to become stratified squamous but partially keratinized. और word use होगा parakeratinized. अच्छा, और भी कोई डिफरेंस आप देख रहे हो? The thin, this stratified squamous epithelium is gonna be wider, चौड़ी हो रही है. अल्लाह ताला केराटिन छीन रहा है इससे, लेकिन इसका stratified number of layers बढ़ा रहा है. किसी तरह तो प्रोटेक्शन देनी है ना, right? Okay, thing is clear कि वहां पे आपकी आउटर लेयर से केराटिन रिमूव हो रहा है, तो कुछ सेल आपको केराटिनाइज मिलेंगे और बाकी नॉन केराटिनाइज्ड, राइट? तो आप उसे फिर कहते हैं पैरा केराटिनाइज और पार्शियली केराटिनाइज. एक खूबी इसकी. अच्छा, मॉडिफाइड है तो क्या है? कभी यहाँ पे आपने हेयर फॉलिकल्स नहीं देखे? सो नो. सो समटाइम्स देयर आर नो व्हिच आर इंपॉर्टेंट. नो हेयर फॉलिकल, यहाँ पे कोई आपको सेबेशियस ग्लैंड्स भी नहीं मिले, स्वेटिंग नहीं होती इस एरिया पे, तो आपको स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं मिले, ठीक है? अच्छा, बट द डिबेट कम्स कि नहीं यार, हमारे ओरल समटाइम्स थ्रश, समटाइम्स टंग इन्वॉल्व हो जाती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, राइट? तो यही है कि इसमें डीप सीटेड आपको इस लेयर की, सो वी कैन सी ऑन द टॉप द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आप कर चुके हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और इसकी वैरायटी क्या होती है? इसकी वैरायटीज केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड. तो जब हम ऑर्डिनरी स्किन का जिक्र करते हैं तो व्हाट कम्स इन योर माइंड? केराटिनाइज्ड. वेरी गुड. सो वी हैव गॉट दैट केराटिनाइज्ड लेयर इन इट, राइट? लेट मी फाइंड द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ इट. Outer surface पे we first discussed that there is a ordinary skin, so laden with the keratinized epithelium which is gonna be peel off. Okay, so what happens अगर आप इसको skin के तौर पे देखें तो you get the epidermis and dermis. जो फर्स्ट ईयर में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वही चीजें आपकी ये outer surface पे होंगी. You told me that your outer surface carries the hair follicles. ऐसे ही? Yes, ma'am. Okay. Hair follicle का वर्ड आ गया तो if you have heard about the term, रोंगटे खड़े हो जाना. Yes, ma'am. या goose flesh skin. Yes, ma'am. ठीक है, क्या होता है इसमें? अभी तो सर्दियाँ जा रही हैं, but what you experience? Erector spinalis. Yeah, there is a muscle attached towards the shaft of your hair. तो क्या करेगा? जब उसकी कंट्रैक्शन होगी, स्मूथ मसल है, इनवॉलंटरी है, सो क्या होगा? हेयर फॉलिकल स्ट्रेटन अप हो जाएगा. सो वी शुड कीप इन माइंड कि हमारी स्किन में अगर ऑर्डिनरी आपने एपिथेलियम के बाद हेयर फॉलिकल का जिक्र किया तो आपके पास उसके साथ एसोसिएटेड मसल भी आ गए, राइट? ओके. देन यू टोल्ड मी दैट देयर शुड बी द सेबेशियस ग्लैंड्स. वो भी आप एक्सपीरियंस करते हो आपके फॉलिकल्स में. समटाइम्स इन्फेक्शन हो जाए, आपने उसको स्क्रैच अप कर लिया, कोई बॉयल बना हुआ है, इट गेट इन्फेक्टेड, तो फॉलिकलाइटिस हो जाता है, इजंट इट? राइट? सो या कोई कट लग जाए, देन अगेन यू कैन गेट सम पसी discharge from that. So underlying gland buried are the sebaceous gland, right? So keep in mind the things associated with your skin. So ये जो आपको bunch मिलेगा, these are the sebaceous glands and they are almost nearby the hair follicle shaft. ये buried shaft है जिसका hair follicle की, जिसका cortex medulla होता है. अगर आप hair की डिटेल पढ़ें, so it also has got different layers, right? और इसके इर्द गिर्द आपको जो bunch of gland का bulk मिलेगा, that is the sebaceous gland. Okay, what else you experience on your skin?
Yeah, you get the sweating. Yes, So the thing you experience in your daily life, you can easily recall that what is present on your outer surface of the lip. The epithelium, ordinary epithelium, and the hair follicles over there, and associated erector pili muscles, and you get the boil, as I've told you, then you get the sebaceous glands and buried sweat glands. Sweat gland की क्या variety है? फर्स्ट ईयर के हिसाब से अगर आप इसकी शेप के हिसाब से Coiled tubular. या सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर। तो अगर आपके कट सेक्शंस याद हो अभी आप प्रोफ से गुजरे तो उसकी एपिथेलियम भी याद होगी। कैन एनीवन टेल? एपिथेलियम और secretory part and excretory part. Yeah, secretory part carries symbolic burden just like that of your thyroid, isn't it? So अगर आप उसका excretory duct वो मेन सड़क जो आपकी स्किन की तरफ सफर करती है उधर क्या एपिथेलियम होती है? There is a stratification then, right? So a rare place where you get the stratified layer, right? So आपको deep seated buried sweat glands मिल जाएंगे, ठीक है? और आपने इसको उसी तरह स्टडी करना है कि ये एपिडर्मिस है और नीचे डर्मिस है, right? Okay. After that we are gonna enter into the red area. This particular we can mark a line and label it as a transition zone. या आप ये कर सकते हैं जो आपको लिप की बाउंड्री लग रही है, that is a transition zone. यहाँ चेंज ओवर हो जाए, ठीक है? फिर क्या हो रहा है? When you enter into the red area, जो आप रूटीन में देखते हो कि ये लिप था सिर्फ, that is red area or vermilion zone. Now what is gonna happen here? It becomes the modified skin. Still skin है, लेकिन बहुत modified हो चुकी है in a sense that first of all we will start with the epithelium. Epithelium में क्या है? The epithelium now is going to become stratified squamous but partially keratinized. और word use होगा parakeratinized. अच्छा और भी कोई difference आप देख रहे हो? The thin, this stratified squamous epithelium is going to be wider. चौड़ी हो रही है. अल्लाह ताला keratin छीन रहा है इससे, लेकिन इसका stratified number of layers बढ़ा रहा है. किसी तरह तो protection देनी है ना, right? Okay. Thing is clear कि वहाँ पे आपकी आउटर लेयर से केराटिन रिमूव हो रहा है, तो कुछ सेल आपको केराटिनाइज मिलेंगे और बाकी नॉन केराटिनाइज्ड, राइट? तो आप उसे फिर कहते हैं पैरा केराटिनाइज और पार्शियली केराटिनाइज। एक खूबी इसकी। अच्छा, मॉडिफाइड है तो क्या है? कभी यहाँ पे आपने हेयर फॉलिकल्स नहीं देखे? सो नो, सो समटाइम्स देयर आर नो व्हिच आर इंपॉर्टेंट। नो हेयर फॉलिकल, यहाँ पे कोई आपको सेबेशियस ग्लैंड्स भी नहीं मिले, स्वेटिंग नहीं होती इस एरिया पे, तो आपको स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं मिले, ठीक है? अच्छा, बट द डिबेट कम्स कि नहीं यार हमारे ओरल समटाइम्स थ्रश समटाइम्स टंग इन्वॉल्व हो जाती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, राइट? तो यही है कि इसमें डीप सीटेड आपको इस लेयर के अगेंस्ट ग्लैंड्स नहीं मिल रहे जो आपको मॉइस्चर एज सच फराहम करे, सो द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अदर सर्फेसेस आर नॉट नाउ हियर। तो यहाँ क्या ऐड हुआ है? एक तो ये लेयर वाइड हो चुकी है, चौड़ी हो गई है। Why? Because the stratum lucidum is thickened and you know it is a translucent layer, right? अच्छा, और क्या तब्दीली आई? ये इसके जो अगर इस तरफ से हम देखें तो देयर आर द डीप सीटेड डर्मल पेपिला। डर्मल पेपिला क्या होते हैं? ये अगर एपिडर्मिस है और ये नीचे वाला पूरा पोर्शन डर्मस है, ठीक है? अब मैं इसको कुछ इस तरह से आपको बताऊंगी कि द डर्मस इज गोना लाइक दिस, जैसे पंजे गाड़े हुए हो, उनको कहेंगे डर्मल पेपिला, ठीक है? और वो डीप सीटेड हो जाएंगे, ओके? जब वो अंदर की तरफ एपिडर्मिस की तरफ पंजे गाड़ देंगे तो व्हाट इज गोना हैपन कि इसके अगेंस्ट हमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स मिलेंगे, राइट? देयर आर सो मेनी ब्लड वेसल्स। तीसरी चीज जो आपको बहुत वाफर आपको मिलती है, they are well laden with the sensory nerve endings. Reason, you take a cup of tea very hot and you burn your lip, that happens, ठीक है? बाकी जगह पे आपको इतनी सेंसिटिविटी नहीं मिलती, लेकिन this particular vermilion zone or red area is having this sensation. तो रीजन क्या हुआ इसके पीछे? The sensory nerve ending, याद रहेगा? Yes, ma'am. One thing, अच्छा, जो ये stratum lucidum चौड़ी हो गई थी और deep seated पेपिला थी और उसमें वेल मार्क्ड ब्लड वेसल्स हो गए थे। सो द डिबेट कैन कम कि व्हाई आर लिप्स सेम
रेड और पिंक, इफ इट इज अ स्किन तो बाकी स्किन को क्या मसले हैं, ठीक है? उसका कलर उस तरह नहीं है, इसका कलर डिफरेंट है, so we can justify in a sense that the stratum lucidum is translucent. ये बिल्कुल ऐसे ही है. I quote an example that if I put so many red glowing light against this wall and I ask you people to go outside, can you see that? No. Okay. If I change this same into a glass wall and glowing blood vessels like lamps are on reddish and you stand on the other side, can you see now? Yes. Okay. So it's very clear कि आपका रेड एरिया कुछ इस तरह से काम करते हैं कि आपकी दीवार की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है और उसके पीछे दिखाई देने वाले लेड जो आपका कलर है वो ग्लो कर रहा है और आपको उसके दूसरी तरफ दिख रहे हैं, ठीक है? और सेंसरी नर्व एंडिंग्स को हम एड्रेस कर चुके हैं कि इफ यू टेक अ हॉट कप ऑफ कॉफी और टी दैट hurts you a lot, right? ठीक हो गया. अब यहाँ पे जी डॉक्टर साहब, Can I ask you a question? surely you can ask now or at the end both. Okay, thank you very much. Okay, the things जो हमने डिस्कस की हैं और नो में क्या आ गया कि जो नहीं है, no hair follicles, no sebaceous gland, no sweat gland, right? Okay, now we have to move towards the Oral surface. this oral, you would say mucosal or inner, कोई भी नाम दे दी. This is just like we call it you as a medical student, we call you as a second year student, we call you as a A badge. So many things we can address. So इसी तरह अगर एक चीज के 2-3 नाम हैं, so you should know कि या तो उसकी लोकेशन होगी या उसका मॉइस्चर से या म्यूकोसा अलाइन कर रहा है, उस वजह से नाम है sort of. So be clear about that. Again, the thing you notice that the epithelium is becoming then much wider और चौड़ी हो गई है. अगेन डीप सीटेड डर्मल पेपिला स्टिल है, राइट? अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें चेंज हो चुकी हैं? द एपिथेलियम हैज बिकम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन केराटिनाइज्ड. तो जो सफर अल्लाह ताला ने केराटिनाइज से शुरू किया था वो पैरा केराटिनाइज्ड हुआ या पार्शली केराटिनाइज्ड हुआ मिडिल में और अंदर जाते हुए नाउ उसमें क्या हो गया है? नॉन केराटिनाइज्ड हो गई, ठीक है? तो इसका मतलब है आप अपना चेंज जो करते हो वो सडन समटाइम्स नहीं होता, इट डिपेंड्स के अकॉर्डिंग टू द नीड. अच्छा, लेयर और अल्लाह ताला ने चौड़ी कर दी, केराटिन कंप्लीटली छीन ली गई है, प्रोटेक्शन तो देनी है. तो आप क्या करते हो कि अगर आपने पत्थर की ईंटों की एक दीवार थी काफी थी, उसको रिप्लेस कर दिया बहुत सारे मोटे मोटे कपड़े, तो आप यहाँ से लेके वहां तक चुनोगे कि उसको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है? सो ऑलवेज थिंक कि जो अल्लाह ताला ने हमारी चीजें लगाई हैं वो बिला मकसद नहीं है, उनका कोई ना कोई रीजन है, ठीक है? बट फ्यू थिंग्स आर देयर, हमें उनका रीजन नहीं पता चलता. सो बट स्टिल हर चीज में हिकमत. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट इज क्लियर, हमें आइडिया होता है कि ये यहाँ पे इस तरह से क्यों है. सो आई थिंक इट वुड बी मोर इजी फॉर यू पीपल टू रिमेंबर किस तरह से एपिथेलियम अपने आप को चेंज कर रही है और कौन से अंदर हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हमें तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं. Okay, what else we expect? इस सेक्शन में नहीं है, but we have got the inner minor, the salivary glands placed over here. Simple tubulo-acinar mucus secreting bunch आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका inner जो है लेयर ये बहुत moist है, ठीक है? Moisture की प्रोटेक्शन का रीजन क्या है कि minor salivary glands are against this inner surface. Again, what we do not have here, no hair follicle, no sebaceous gland, no sweat gland, ठीक है? और बट डीप सीटेड डर्मल पेपिला है और उसके अगेंस्ट आपको ये माइनर salivary glands मिल जाएंगे. Is it clear? Yes, about the three surfaces? Okay. The most important which we say that last but not the least, that is that we talk voluntarily, we eat voluntarily, so our lips they move voluntarily, isn't it? ऐसे ही, ठीक है? So ये voluntary जो movement है, there should be some voluntary muscle inside. क्या हो सकता है? Yeah, very good. You can name it. अभी आपका head and neck नहीं है, definitely you're not acclimatized with the terminology of the muscles, but the orbicularis oris muscle है आपका deep seated, जो जिसकी bunch इस तरह दिखाई दे रही है, and when you draw it, you will draw the section of that skeletal muscle.
उसमें आप क्या करेंगे, अगर ट्रांसवर्स बंडल आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसकी पेरीफ्री पे न्यूक्लियाई लगाएंगे। गेट इट? फर्स्ट ईयर का आपको याद होना चाहिए कि स्केलेटल आपने कैसे ड्रॉ किया था। अगर आपके सेक्शन में ओब्लिक या एलएस आ रहा है तो पेरीफ्री पे मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स आपको मिलती थी। यू गेट इट? जस्ट दैट इज द रिपीट ऑफ द नॉलेज यू हैव ऑलरेडी डन। फर्स्ट ईयर में बेसिकली हम क्या करते थे कि एक दिन था उसमें हमने सिर्फ एपिथेलियम पढ़ी, ऐसे होता था। नेक्स्ट डे जी अब हम उसके कनेक्टिव टिश्यू की ऑर्गन, एक ही टिश्यू में हमें एपिथेलियम भी मिल गई और ये जितना बाकी सपोर्टिंग टिश्यू होता है जो आपका डर्मिस बना रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, राइट? बिल्कुल सेंटर में आपने मसल भी देख लिया, राइट? आपने डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स भी देख लिए। सो आपको एक ही ऑर्गन में जो फर्स्ट ईयर के पूरी क्लासेस का निचोड़ था यू आर सपोज टू एड्रेस इन अ सिंगल नॉट, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी ऑब्जर्व दिस। सो लेट मी शो सम अदर stratified squamous top layer. We observe that the outermost layer should be having the keratohyalin granules containing cells. ये आपको 5 लेयर जिसमें आपने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ा था। Can anybody revise those layers? Can anyone? Stratum. Corneum, lucidum. सबसे नीचे क्या होती है? Basal, ठीक है? Spinosum, then granulosum, then lucidum, and then corneum. Okay, keep on adding. So उसके आप कोई भी mnemonics बना सकते हो ताकि आप उसको याद कर सको. Though skin is not directly practical here or a topic of discussion, but you should know the previous things in your mind. Right? तो उसी की एक lucidum layer थी जो यहाँ thicken हो गई थी और translucent थी. Right? So this is how we learn the things. Okay. अब ये इनर सरफेस जो आपको एपिथेलियम दिखती है और किसी जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स के बंचेस आपको दिख रहे हैं इनकी एक्सक्रीटरी डक्ट बाहर की तरफ निकलती दिखाई देगी जो कि अपनी सिक्रीशन पूरा आउट करेगी। ये बंचेस हैं जो डिफरेंट आपको दिख रहे हैं द माइनर सैलिवरी ग्लैंड, राइट? फिर आप फेरिंग्स में जाते हो, देन आप देखते हो नीचे ईसोफेगस की कंटिन्यूशन है जिसने आपके स्टमक में खुलना है एंड कीप ऑन एडिंग आपके पास फर्दर पार्ट्स ऑफ योर जीआईटी। सो अगेन अ लुक जस्ट व्हेन यू डिस्कस द ईसोफेगस ग्रॉसली, शायद पढ़ चुके हो आप थॉरेक्स में जहाँ स्ट्रक्चर थे कि इफ नॉट तो डेफिनेटली एब्डोमेन में यू विल लर्न अबाउट इट एज वेल। ओके, हियर यूजुअली व्हेन वी फोकस अंडर द स्लाइड while you identify, तो हम कुछ उसका ये पोर्शन स्लाइड के नीचे रखते हैं। उसमें क्या होता है? दिस इज द आउटर सरफेस। क्या देखोगे कि ये एरिया हेयर शेफ्ट को डिपिक्ट कर रहा है। एपिथेलियम पतली है और ये चौड़ी होती जा रही है। ये एरिया रेड एरिया कहलाता है जहाँ पे ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं और उससे स्पिल्ड आउट रादर टोन ब्लड वेसल से आपको डिफरेंट ब्लड सेल्स इन द टिश्यू में टोन आउट दिखाई दे रहे हैं। अगेन द एपिथेलियम, सो वी मस्ट नाउ exit. Can you guess this region of the lip is what? कौन सी surface हो सकती है at this 4x? The outer one. Why outer one है? ये thin stratified squamous keratinized है. At even 4x you can judge. These vertically you can see the sections. These are the hair follicles. या तो उसकी आपको रूट कटी हुई दिखाई देती है द डार्कर एरिया, या आप उसको एलएस में कटा हुआ है तो उसकी शेफ्ट भी दिखाई देती है। और ये जो बंचेस हैं ये सारे के सारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं और अगर आप इसको एपिडर्मिस कह रहे हैं तो ये सारा डर्मल एरिया है, राइट? अच्छा, अब हम इसको ट्रेस करते हुए सारी स्किन है दोनों तरफ देखें, मीन्स कि इसके कोई अगर ये अपर लिप का पार्ट है तो कोई स्किन टैग ऑफ योर नोज कैन कम। इवन इफ यू स्टडी द चीक्स सेम फीचर्स यू ऑब्जर्व as that of the lip, except कि उसमें elastic tissue बहुत ज़्यादा होगा। Why? क्योंकि अगर elasticity ना हो तो whenever we used to swallow that bolus of the food, तो हम क्या करें, हम अपना अंदर gum bite या जो mucosal bite बहुत frequent हो जाए। कभी कभी experience हो होगा कि हम खा भी रहे हैं बातचीत करते सडन हमारा mucosa teeth के नीचे आ जाता है। We feel that, okay? So अल्लाह ताला ने क्या किया कि हमारे cheek में इलास्टिक टिश्यू बहुत ज़्यादा डाल दिया, दैट सेव्स अस फ्रॉम दिस ट्रॉमा आई वुड से।
So इसको हम रोटेट कर रहे हैं अभी 4x पे ताकि आपको आइडिया व्हाट स्ट्रक्चर वी आर कमिंग